السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج اسرائیل کے کنٹرول والے مغربی کنارے کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے فلسطینی صدر عباس سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینیوں کی صحت کی خدمات میں مدد کے لیے مشرقی یروشلم کے ہسپتالوں کو اضافی $100 ملین دینے کا وعدہ کیا۔ دیگر منصوبہ بندی اعلانات میں فلسطینی اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، جیسے غزہ اور مغربی کنارے میں G4 وائرلیس نیٹ ورک مہیا کرنا۔ تاہم بائیڈن فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن مذاکرات کے لیے کوئی نیا منصوبہ نہیں لا رہے ہیں۔ بائیڈن جمعے کو بعد ازاں سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ان کی آمد سے چند گھنٹے قبل جمعرات کو دیر گئے اعلان کیا کہ وہ تمام کیریئرز کے لیے اپنی فضائی حدود کھول رہا ہے، جس سے ملک کی اسرائیل جانے اور آنے والی پروازوں پر پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیل کے نگراں وزیر اعظم یائر لاپڈ سے ملاقات کی۔ اپنی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کی، جس میں اپنے معاہدے کے بارے میں بتایا کہ وہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ تاہم وہ ایران کی جوہری ترقی کو روکنے کے مؤثر ترین طریقہ کار پر متفق نہیں ہو سکے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سفارتکاری ہی بہترین طریقہ ہے۔ لاپڈ نے کہا کہ ایران کو روکنے کے لیے اس کو یہ باور کرانا ضروری ہوگا کہ اگر وہ اپنے جوہری پروگرام کی تیاری جاری رکھے گا تو آزاد دنیا طاقت کا استعمال کرے گی۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے خبریں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے جمعے سے ملک بھر میں مانسون کے باعث مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ بارشوں کا یہ تازہ سلسلہ 20 سے زائد شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے جمعے کو ہونے والے اجلاس میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی اور صوبائی اداروں اور صوبائی حکومتوں کو متحرک رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ پاکستان میں جون کے وسط سے شروع ہونے والے مانسون کے پہلے اسپیل سے ملک کے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، اور اب تک شدید بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات میں تقریباً 176 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بارشوں کے باعث سیلاب کی صورتحال نے سب سے زیادہ کراچی اور جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں تباہی مچائی، اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کو کراچی میں رین ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی۔ عید کے موقع پر حیدرآباد میں ایک نوجوان کے قتل کے بعد سندھ میں لسانی پرتشدد احتجاج کی ایک نئی فضا سامنے آئی ہے۔ حیدرآباد میں 34 سالہ بلال کاکا کو معمولی جھگڑے کے بعد قتل کیے جانے کے بعد اگرچہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا، لیکن رد عمل کے طور پر صوبے کے مختلف علاقوں میں چائے کے ہوٹلوں کو بند کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ وہاں کام کرنے والوں اور مالکان کو زد و کوب کیا گیا، جبکہ انہیں صوبہ نہ چھوڑنے کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد کراچی کے کچھ حصوں میں احتجاج ہوا۔ سہراب گوٹھ میں ہونے والے احتجاج پرتشدد ہو گیا، جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ احتجاج کیا گیا اور موٹر وے کی طرف جانے والی سڑک بلاک کر دی گئی۔ تشدد کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 2 گاڑیوں کو نذر آتش کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کے خلاف FIR درج کر کے 2 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جمعرات کو ایک میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا ایک وفد کوئلے کی درآمدات پر بات چیت کے لیے آئندہ ہفتے افغانستان پہنچے گا۔ بزنس ریکارڈر نے رپورٹ کیا ہے کہ کامرس سیکریٹری صالح احمد فاروقی اس ٹیم کی سربراہی کریں گے، جو 17 اور 18 جولائی کو افغان حکام سے ملاقات کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت
बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी के हालिया इजलास में फैसला किया गया था कि ड्यूरेंट लाइन के पार कोयले की तिजारत पर बातचीत के लिए एक वर्किंग लेवल का वफ्द अफगानिस्तान भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तोरखम, खरलाची और गुलाम खान टर्मिनल्स पर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ऑपरेशंस जारी रखने पर बातचीत की जाएगी। ड्यूरेंट लाइन की अफगान साइट पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियों की आमदरफ्त भी एजेंडे में शामिल है। तालिबान की वजारत पेट्रोलियम से राब्ता किया गया, लेकिन जुमे की तातील की वजह से उनका कोई रद्द अमल सामने नहीं आ सका। तालिबान की वजारत बराए कुदरती आफात के इंतज़ाम ने मकामी मीडिया को बताया है कि मुल्क में हालिया सैलाब से 70 अफराद हलाक और 90 ज़ख्मी हो गए हैं। वजारत के मुताबिक सैलाब से 225 मकानात और ज़रई अराज़ी को नुकसान पहुंचा है। नूरिस्तान कुन्नड़ शाहराह, जो गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिश और सैलाब के बाद बंद कर दी गई थी, जुमेरात को दोबारा खोल दी गई है। बुद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने कहा है कि वो तिब्बत की आज़ादी नहीं बल्कि उसकी बामानी खुद मुख्तारी और चीन के साथ रहकर इलाके की बुद्ध मत सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख खित्ते के 1 माह के अपने दौरे के आगाज़ पर उन्होंने जम्मू में नामानिगारों को बताया कि चीन के चंद सख्तगीर हुक्काम उन्हें एक अलहदगी पसंद और रजत पसंद समझते हैं और हमेशा उनको हदफ तनकीद बनाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा चीनी बाशिंदों में ये एहसास पैदा हो रहा है कि दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी नहीं चाहते, बल्कि बीजिंग से तिब्बत को बामानी खुद मुख्तारी देने और उसकी बुद्ध मत सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ख्वाहिश रखते हैं। बीजिंग ने दलाई लामा के इस बयान पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने आज जुमे को मुल्क के कायम मकाम सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से ने मालदीव से सिंगापुर जाने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। श्रीलंका में माशी बहरान की वजह से होने वाले मुजाहरों के बाद वो मुल्क से फरार होने के बाद सबसे पहले मालदीव गए थे। पार्लियामेंट के स्पीकर ने जुमे को राजापाक्से का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्धने ने कहा कि अब हम आईनी तौर पर नए सदर की तकर्रुरी की तरफ बढ़ेंगे। सिंगापुर में श्रीलंकन हाई कमीशन ने इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा दिया। कोलंबो में मुजाहिरीन ने जुमेरात को सरकारी इमारतें खाली कर दी, जिनमें सदर और वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाहें भी शामिल हैं, जिन पर उन्होंने हालिया दिनों में कब्जा कर लिया था। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके शिनजांग या सिंकियांग का पहला अवामी दौरा किया है, जो इस खित्ते में क्रैकडाउन के बाद उनका पहला दौरा है। शिनजांग में बड़ी तादाद में तुर्कुन नस्ल वीगर मुस्लिम आबाद हैं। बीजिंग पर इस खित्ते में लाखों वीगर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों को हिरासती मराकज़ में रखने का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक के कानून साज शिनजांग में चीन के इक़दामात को नस्ल कुशी करार देते हैं और उस पर मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कई किस्म की पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। अलबत्ता बीजिंग इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है और उसे सदी का सबसे बड़ा झूठ करार देता है। चीन का मौक़िफ़ है कि उसकी पॉलिसियाँ इस्लामी इंतहा पसंदी के ख़तरे से लड़ने में मदद देती हैं। मई में चीन के गैर मामूली दौरे के दौरान इंसानी हकूक़ की सरबराह मिशेल बैचलेट ने बीजिंग पर जोर दिया था कि वो शिनजांग में मनसूबाबंदी और बिला इम्तियाज़ इक़दामात से गुरेज करे। अलबत्ता उन्होंने शिद्दत पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में होने वाले नुकसानात को तस्लीम किया था। ताहम उन्होंने अपने इस दौरे को तहक़ीक़ात कहने से गुरेज किया था। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने जुमेरात को द हेग में यूक्रेन की एहतसाब कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि हकीकत यह है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन में बच्चे, औरतें, मर्द, जवान और बूढ़े खौफ और दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40 ममालिक ने शिरकत की। करीम खान ने कहा कि यूक्रेन में जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए एक अहम हिकमत अमली की ज़रूरत है।
यूक्रेन ने मुल्क के अंदर होने वाले जराइम पर आईसीसी को दायरे इख्तियार दे दिया है, जिससे अदालत की तहकीकात का आगाज हुआ है। यूक्रेन और रूस आईसीसी के रुकन नहीं हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया है कि रूसी मिसाइल जुमेरात को वस्ती यूक्रेन के शहर वेनेत्सिया पर गिरे, जिसके नतीजे में कम से कम 23 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि 3 मिसाइलों से शहर के वस्त में वाक़ई एक दफ्तर की इमारत को निशाना बनाया गया। बहर असद में रूसी आबदोज से किए जाने वाले हमलों ने इलाके में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया और करीबी पार्किंग में मौजूद 50 गाड़ियां भी उसका निशाना बनी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में आईसीसी के इजलास से खिताब करते हुए इसे रूसी दहशतगर्दी का अमल करार दिया। मगरबी वज़राए ख़ज़ाना ने जुमे को इंडोनेशिया में होने वाले G20 मुज़ाकरात में यूक्रेन पर मॉस्को के हमले की मजम्मत करते हुए रूसी हुक्काम पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया है। बाली जजीरे पर 2 रोज़ा इजलास रूसी फौजी हमले के पस मंज़र में शुरू हुआ। इस जंग ने दुनिया के बाज़ारों में अफरा तफरी पैदा कर दी है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। ट्रेजरी की एक एहलकार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलेन ने इफ्तिताही सेशन में रूसी वफ़द को बताया कि आलमी मईशत पर मनफी असरात के लिए मुकम्मल तौर पर रूस ही जिम्मेदार है। उनका कहना था कि रूस के हुक्काम को ये तस्लीम करना चाहिए कि वो पुतिन हुकूमत की मुसलसल हिमायत करते हुए इस जंग के खौफनाक नताइज में इजाफा कर रहे हैं और वो मासूम जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं। एक कैनेडियन एहलकार ने बताया कि कनाडा की वज़ीर ख़ज़ाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की तायीद की और रूस के वफ़द को बताया कि वो यूक्रेन में जंगी जराइम का जिम्मेदार है। रूसी वज़ीर ख़ज़ाना एंटोन सलावानोफ और यूक्रेन के वज़ीर ख़ज़ाना सरही मार्चिनको दोनों ने इस इजलास में वर्चुअली शिरकत की। मॉस्को ने उनके बजाय रूसी नायब वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर मैक्सिमोफ को ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए भेजा। बातचीत में मौजूद एक ज़रिए के मुताबिक वो उस वक्त मौजूद थे जब येलेन और फ्रीलैंड दोनों रूस की मजम्मत कर रही थीं। मेज़बान और G20 के सरबराह इंडोनेशिया ने वज़रा को खबरदार किया कि तवानाई और खुराक के बहरान से निमटने में नाकामी तबाहकुन होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो लाखों यूक्रेनी बाशिंदों को यूक्रेन के मशरक़ी और जनूबी हिस्सों से, जिन पर उसका कंट्रोल है, जबरन निकाल कर रूस भेज रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि अंदाज़न 9 लाख से 16 लाख यूक्रेनी शहरियों को, जिनमें 2,60,000 बच्चे भी शामिल हैं, हिरासत में लिया गया है, उनसे तहक़ीक़ात की गई हैं और उन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल कर रूस भेजा गया है और छानबीन की कार्रवाइयों के बाद उनमें से कुछ को मशरक़ बईद के अलग थलग इलाकों में भेजा गया है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दे रहा है कि वो हेटी में ऐसे गिरोहों को छोटे और हल्के हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई बंद करने की कोशिशें करे जो मुजरिमाना तशद्दुद और अगवा की वारदातों में इजाफे को रोकने में नाकाम रहे हैं। बीजिंग ने जुमेरात को कौंसिल से इज्तिमाई तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया और ऐसे अफराद पर सफरी पाबंदी और उनके असासे मुंजमद करने पर आमादगी का इजहार किया जो गैंग तशद्दुद और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की हिमायत करते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। आज के बुलेटिन की एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।